Hello, friends. Before we start, I have a small request to you all. Usually, my content is focused on Tamil audiences, and I will continue to create videos in Tamil. But for this particular discussion, I am intentionally using a Hindi and an English hybrid format because I want this topic to reach people across India. I am from Tamil Nadu. My connections are deeply rooted with the Tamil language and culture, and my devotion to the Tamil language will always remain strong. At the same time, some issues go beyond one state or one language, and I feel this discussion is one such topic. So I request everyone, whether you are from Tamil Nadu, watching from Tamil Nadu, or any other part of the country, to listen to this discussion with an open mind. And this video is not about attacking any individual or any political party, be it from the state or center. It is about discussing a policy which has a lot of public concerns, understanding the public concern, and sharing different opinions and perspectives. So let's get into the video. अब मैं टॉपिक पर आता हूँ. So सबसे पहले टॉपिक में नितिन गडकरी जी को क्रेडिट देना जरूरी है. Why should we give नितिन गडकरी जी क्रेडिट? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत लंबा है, बहुत सिग्निफिकेंट रहा है उनका कंट्रीब्यूशन. इंडिया के रोड नेटवर्क में जो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ थे हम लोग देख रहा है, वट एवर वी आर सीइंग, उसके लिए उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट एंड तारीफ करना ही चाहिए. ही हैज डन अ ट्रुमेंडस वर्क इन इम्प्रूविंग इंडियाज रोड नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री. उत्तर से लेकर दक्षिण तक बेहतर काम किया उन्होंने. Right from Kashmir to Kanyakumari, his job has been outstanding in terms of the highway development. मगर एक पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अभी. व्हाट इज दैट पॉलिसी? E20 petrol policy. So what is that E20 petrol policy? So basically the composition of petrol, right? It's not 100% pure petrol across the globe. I mean, if you want to get 100% pure petrol, you have to spend a lot of money so that you can avail that, petrol. Say, for example, here the E20 petrol means 20% of ethanol, 80% of petrol. So that's why it's called E20. So if you go to Indian oil pump, if you put XP100, XP100 means it's a supreme petrol with 100% of only petrol. It's uncorrupted, as you can say. It means that ethanol is not mixed up. So ये E20 पेट्रोल पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस है जो बहुत सारे सिटीजन्स के माइंड में अभी मौजूद है. What are those questions? So before going to that questions, we have to observe certain patterns in the last 12 years. How the Modi ji ka sarkar jo hai, how it has performed in this last 12 years. What are all the major policy decisions they made in the past and they are making now. They might make certain things in future. We have to unpack them. So अगर हम 2014 के बाद की मेजर पॉलिसी डिसीजंस को देख के, तो लगभग हर कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बड़े डिसीजंस लिया है. सो whenever there has been a 2.5 years, the halfway mark of the government, Modi ji's past 3 governments, 2.5 साल टेन्योर का लाइक आप स्प्लिट करोगे, सो यू विल सी अ पैटर्न दैट द सरकार मोदी जी का सरकार जो है, इट मेक्स बड़े पॉलिटिश बड़े लाइक व्हाट इज इट मेक्स अ वेरी बिग पॉलिसी डिसीजन. गवर्नमेंट ने बड़े डिसीजंस लिया है इस समय में. सो एग्जांपल 2016 में डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ. गवर्नमेंट का बहुत
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स था इसमें। गवर्नमेंट ने उसके लिए लॉन्ग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए, लेकिन शॉर्ट टर्म में पीपल को बहुत तकलीफ हुआ, लोगों को, आम आदमियों को स्पेशली बहुत तकलीफ हुए उस समय। इफ यू रिकलेक्ट, पीपल वर स्टैंडिंग इन एटीएम क्यूज डे आफ्टर नाइट। एटीएम के सामने लोग खड़े थे, एटीएम में पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो भी यू हैव टू विड्रॉ ओनली 2000। अगर 2000 विड्रॉ किया तो एक नोट आते हैं, 2000 नोट आते हैं, छुट्टा नहीं मिलता, you won't be able to get change में छुट्टा मतलब you won't be able to get change from the shopkeepers. So lot of day to day routine problems were there, not for days, it was there for months, everybody have experienced that. So ये भी reality है, तो बहुत तकलीफ हुआ लोगों को, वो reality था, though it had long term benefits. Then उसके बाद 2019 में सेकेंड टर्म के दौरान फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस किया गया है, दूसरा टर्म में ये, इसको लेकर हम पूरे देश में डिबेट हुए थे। देयर वाज अ बिग डिबेट अक्रॉस द एंटायर कंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर फार्म बिल्स। कुछ स्टेट्स को अप्रूवल मिला है, सम स्टेट्स अप्रूव्ड ऑफ दिस डिसीजन, सम स्टेट्स रिजेक्टेड इट, स्पेशली पंजाब। फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए और एवेंचुअली लॉस को वापस करवा दिया सरकार ने। दैट इज वन, दैट इज व्हाट 2019। अब तीसरे टर्म में ये E20 फ्यूल पॉलिसी को अग्रेसिवली पुश कर रहा है सरकार। मेरा सिंपल सा एक सवाल है, क्या इस ट्रांसिशन को ग्रेजुअली तरीके से क्यों नहीं कर सकता? सो व्हाई डोंट दे पुश दिस वन ग्रेजुअली इफ इट हैज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट? अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि नहीं, दैट विल ओनली टाइम विल टेल, वी डोंट हैव रिसर्च पेपर फॉर दैट। सो अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलता है और फार्मर्स को एक नया मार्केट मिलता है, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव स्टेप है। से टेक एन एग्जांपल, द मिडिल ईस्टर्न वॉर्स आर गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड ईरान। सो अमेरिका और ईरान के बीच वार चल रहा है, इसीलिए लाइक फ्यूल इंपोर्ट में बहुत तकलीफ हो रहा है। दैट्स नॉट ओनली एन इंडियन प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सो फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, हर दुनिया में हर कोने में बढ़ चुके हैं, बट देखिए ऑब्जेक्टिव अच्छा हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी आर बिल्डिंग दिस एथेनॉल ब्लेंडिंग। लेकिन किसी भी पॉलिसी में सिर्फ इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, दिस इज ह्यूमन थिंकिंग, राइट? सिर्फ इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट तो है, उतना भी मौजूद है, महत्वपूर्ण है इस जमाने में। वो इम्प्लीमेंटेशन जो कैसा कर रहा है, मौजूद है, दैट स्थिति कैसा मौजूद है, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट होता है। आज भी बहुत सारे व्हीकल्स ओनर्स के माइंड में जेन्युइन डाउट्स है, क्या मेरा कार या मेरा बाइक E20 कंफर्टेबल है कि नहीं? बिकॉज इफ यू टेक अ लुक इन इंडिया, lot of vehicles, India has a different vehicle contention, unlike in the US. You have predominantly cars, predominantly premium vehicles. In India you have two wheelers, predominant them of two wheelers, you have mopeds, that two older mopeds, you have autos, you have apes, you have जो बोलते हैं ना टम टम, share auto, whatever that's called an ape, you have tempos, you have cars, you have minivans, you have trucks, you have motor rickshaws. So बहुत सारे हैं. So how come the common man will know whether this vehicle is E20 compatible or not? So क्या माइलेज इम्पैक्ट पड़ेगा? So माइलेज में क्या इम्पैक्ट होता है किसी आम आदमी को? नो, देयर इज नो अवेयरनेस फॉर द कॉमन मैन, पता नहीं रहता। क्या लॉन्ग टर्म
इंजन परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट होगा कि नहीं वो भी पता नहीं है. इट्स नॉट इवन लाइक known to an educated man, leave alone a common man. क्या मेंटेनेंस कास्ट इंक्रीज होगी होगा कि नहीं होगा. That's their thought process. So if the maintenance cost increases, what if the engine ceases? इंश्योरेंस का भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. दैट इज ऑल्सो थॉट प्रोसेस. ये सब जेन्युइन कंसर्न्स है जो सिटीजन्स के मन में जो है, सरकार हैज टू एड्रेस देम बेसिकली. और जब पब्लिक के माइंड में इतना क्वेश्चंस होते हैं तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और विश्वास बढ़े लोगों को. So basically, BJP government has to build the confidence so that people are not, afraid of this move. And we are seeing in social media and across other media, which is obviously unverified, but still there are genuine concerns. If the vehicle seizes, if the vehicle breaks down, if there are problems, government has a responsibility to address it. लेकिन पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है. सी, when you announce a policy, right, as big as this one, पॉलिसी अनाउंस करना एक बात है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. अनाउंसिंग द पॉलिसी इज वन, बट क्रिएटिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट. और बीजेपी के लिए भी मेरी एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन है. अगर बीजेपी फ्यूचर इलेक्शंस जीतना चाहते थे, पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन करना जरूरी है. बिकॉज like I said before, BJP has done a lot of good work in lot of areas. Say for example, मैंने जो वीडियो का पहले मिनटों में मैंने बता दिया, नितिन गडकरी जी has done a tremendous work in the highway and transport department. And the digital revolution, which Modi ji's vision was, that was a very big hit, and it's creating wonders across the country. So अगर ये ट्रस्ट, ये विश्वास जनता से भारतीय जनता पार्टी मेंटेन करना चाहते हैं तो इस इश्यू को, पब्लिक कंसर्न्स को सीरियसली एड्रेस करना ही होगा उनको. सिर्फ डिसीजन लेना इनफ नहीं है, लोगों को समझाना, उनका डाउट्स क्लियर करना और उनका ट्रस्ट जीतना भी जरूरी है. मैं फिर ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टी को इंसल्ट करने के लिए नहीं है. जहाँ गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है वहाँ अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए. हम दे भी रहा है उसको. लेकिन जहाँ पब्लिक कंसर्न्स होगा वहाँ क्वेश्चंस पूछना भी उतना ही जरूरी है. जो तारीफ करना इतना जरूरी है तो उतना जरूरी है तो जब गलती हो रहा है सवाल भी रेज करना जरूरी होगा, महत्वपूर्ण होता है. डेमोक्रेसी के मतलब है कि सिटीजन्स क्वेश्चंस पूछना सके और पॉलिसीज पर डिसीजन कर सके, करना चाहिए. सो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल आस्किंग क्वेश्चंस and the policy makers explaining the policies. So आपका क्या ओपिनियन है इस पॉलिसी में? डू यू थिंक E20 पेट्रोल रोल आउट इज हैपनिंग एट द राइट पेस, और या जल्दबाजी में हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट को उसका ट्रांसिशन को और ग्रेजुअल बनाना चाहिए था? लेट मी नो इन द कमेंट्स पे अपनी ओपिनियन जरूर शेयर किए करें. थैंक यू. जय हिंद.